Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss 10 highly important mains oriented questions from Unit 1. I will not give you a long lecture. Instead, we will understand the central argument and the key points that you should include in your mains answer. जैसा आप लोगों को पता है कि यूपी पीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की मेंस की डेट 17 सितंबर है, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैं 4-4 5-5 ऑथर की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी इन शॉर्ट, और आप उसको फिर से खुद से प्रैक्टिस करोगे। सो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, discuss Chaucer as a representative poet of the Middle Ages. How does the prologue to the Canterbury Tales reflect the social, religious and literary conditions of medieval England? तो इस क्वेश्चन में हम कैसे डिस्कस आपको थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ, आप उस हिसाब से आप आंसर अपना राइट करोगे। सबसे पहले हम लिखेंगे Chaucer is called the representative poet of the Middle Ages because this Canterbury Tales gives us a broad picture of medieval English society. Then हम उनके मेजर एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, सोशल लाइफ, देन पिलग्रिम रिप्रेजेंट डिफरेंट क्लासेस, नाइट, स्क्वायर, प्रायरस, मंक, प्रायर, मर्चेंट, वाइफ ऑफ बाथ एंड प्लाउमैन इटीसी। ओके, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, बस 4-5 कैरेक्टर होने चाहिए। थ्रू दैम चॉसर प्रेजेंट्स द फ्यूडल, रिलीजियस एंड इमर्जिंग मिडिल क्लास सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड। देन हम रिलीजियस लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। Many characters are connected with the church. Then Chaucer shows both sincere religious people and corrupt church officials. For example, the pardoner sells fake relics and exploits people's faith. And हम इनके literary condition के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो लिखेंगे कि Chaucer had stabilized English as an important literary language. He also combines medieval traditions with realistic characterization and humor. So, मैंने आपको शॉर्ट में इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि आपको कैसे लिखना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। Chaucer stands at the transition between the medieval age and the Renaissance. Discuss this statement with reference to the prologue to the Canterbury Tales. इस क्वेश्चन में हम पहले डिस्कस करेंगे Chaucer belongs to the Middle Ages, but his poetry contains several qualities that anticipate the Renaissance. Okay? और फिर हम इसके medieval elements के बारे में बात करेंगे, religious background, pilgrimage, medieval society hierarchy, Christian world view. Then फिर हम इनके elements के बारे में बात करेंगे, individualism, interest in human personality, realistic observation, secular interest. Okay, then हम example देंगे कि Chaucer does not present the pilgrims simply as religious figures. He gives them individual personalities, occupations, habits and weaknesses. Therefore, Chaucer can be seen as a bridge between medieval tradition and Renaissance humanism. In short, सबसे पहले हम Chaucer के बारे में डिस्कस करेंगे, then medieval tradition के बारे में, then emerging humanism, then transition to Renaissance. Question number 3. Discuss Edmund Spenser as a representative poet of the Elizabethan Renaissance. How does epithalamion reflect Renaissance humanism एंड क्लासिकल इन्फ्लुएंस? इस क्वेश्चन में हम शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। पहले एडमंड स्पेंसर इज़ वन ऑफ द मेजर पोइट्स ऑफ एलिजाबेथ रेनेसा। देन एपिथैलामियन इज़ द वेडिंग पोम सेलिब्रेटिंग स्पेंसर्स मैरिज। हिज वाइफ नेम इज़ एलिजाबेथ बॉयल। एंड देन हम रेनेसा ह्यूमनिज्म के बारे में बात करेंगे। द पोम सेलिब्रेट्स ह्यूमन लव, ब्यूटी, मैरिज, फिजिकल एंड इमोशनल हैप्पीनेस, एक्सपीरियंस। ओके, देन हम इन्फ्लुएंस के बारे में बात करेंगे कि स्पेंसर ड्रॉज अपॉन क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन, स्पेशली द क्लासिकल एपिथैलामियन और वेडिंग सॉन्ग। एंड द पोम ऑल्सो शोज स्पेंसर्स लव ऑफ ब्यूटी, माइथोलॉजी, नेचर एंड क्लासिकल लर्निंग। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम स्पेंसर के बारे में बात करेंगे, फिर हम एलिजाबेथन रेनेसा के बारे में बात करेंगे, फिर हम ह्यूमनिज्म के बारे में बात करेंगे, देन क्लासिकल इन्फ्लुएंस के बारे में बात करेंगे, देन इस पोम की ब्यूटी के बारे में बात करेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 4. एग्जामिन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसा पोइट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू स्पेंसर्स एपिथैलामियन एंड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट.
इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले रेनेसा पोइट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासिकल लर्निंग, ह्यूमनिज्म, इमेजिनेशन एंड रिलीजियस थॉट। देन हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ह्यूमनिज्म, इंटरेस्ट इन ह्यूमन लाइफ, पर्सनैलिटी एंड एक्सपीरियंस। देन क्लासिकल इन्फ्लुएंस, ग्रीक एंड रोमन mythology, लिटरेचर एंड लिटरेरी फॉर्म्स इन्फ्लुएंस रेनेसा पोइट्स। देन हम इसके रिच इमेजिनेशन के बारे में बात करेंगे। पोइट्स यूज एलेबोरेट इमेजरी, सिम्बलिज्म एंड ग्रैंड पोइटिक लैंग्वेज। देन रिलीजियस थीम्स के बारे में बात करेंगे। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डीपली कंसर्न विद गॉड, फ्री विल, टेम्पटेशन, सिन एंड सैल्वेशन। देन हम लास्ट में लव ऑफ ब्यूटी एंड नेचर, दिस इज पर्टिकुलरली विजिबल इन स्पेंसर्स एपिथैलामियन। सो हम लास्ट में Spencer represents the celebration of love, beauty and Renaissance humanism, while Milton combines Renaissance learning with Christian epic tradition. इस बात से हम क्वेश्चन के आंसर को एंड करेंगे। तो इसमें पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? सबसे पहले रेनेसां पोइट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, देन ह्यूमनिज्म, देन क्लासिज्म, देन इमेजिनेशन, what poet use symbolism and imagination in his poetry, and individual expression के बारे में बात करेंगे। Then question number 5, discuss John Donne as a representative poet of metaphysical poetry. Explain the major characteristics of the metaphysical school with reference with the canonization and a valediction forbidding mourning. तो यहाँ पे हम जॉन डन के 2 पोम के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जॉन डन इज कंसिडर्ड द लीडिंग पोएट ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल। Then his poetry is known for intellectual wit, conceits, paradox and visual comparison. फिर हम characteristics के बारे में बात करेंगे। Metaphysical conceit के बारे में, a surprising and extended comparison between two very different things. For example, in valediction, Donne compares two lovers to the two legs of a compass. Although they are separated, they remain connected. फिर इसके wit के बारे में बात करेंगे। Then combines intelligence, argument and clever ideas. Then paradox, he often expresses apparently contradictory ideas to reveal a deeper truth. And fusion of thought and emotion, his famous characteristic is often described as the unification of sensibility, जो T.S. Eliot कॉइन किए थे अपने ऐसे में द मेटाफिजिकल पोइट्री में। इसको भी आप ध्यान से इसको पढ़ के उसके हिसाब से आपको आंसर में इसको इंक्लूड करना है। देन हम थोड़ा सा पॉइंट कैनोनाइजेशन का भी डिस्कस कर लेंगे इसमें, कि Donne presents the lovers relationship as so powerful that they become like saints of love, and the valediction forbidding mourning को इसमें कंबाइन करेंगे कि the poet argues that a true spiritual love does not disappear because of physical separation. तो इसके एग्जाम पॉइंट्स हम क्या हो जाएगा? Donne, then wit plus conceit, then paradox, then intellectualism, then love, then fusion of thought and emotion. So 5 क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब हम 6th क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। Compare and contrast the treatment of love in Donne's The Canonization and Marvel's To His Coy Mistress. How do metaphysical wit and the carpe diem tradition operate in this poem? इसमें एंड्री मार्वेल के पोम और जॉन डन के कैनोनाइजेशन को डिस्कस करना है, उसके बीच डिफ्रेंशिएट करना है कार्पे डियम के ट्रेडिशन के हिसाब से। सो हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे, बोथ पोम डील्स विथ लव बट देयर अप्रोचेज आर डिफरेंट। ओके, देन डन द कैनोनाइजेशन, लव इज प्रेजेंटेड एज समथिंग स्पिरिचुअल एंड ऑल्सो ऑलमोस्ट सेक्रेट। द लवर्स बिकम सेंट ऑफ लव। Donne uses wit, paradox and metaphysical conceits. Then love becomes more important than society's judgment. फिर हम मार्वल के टू इज कॉय मिस्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि लव इज़ कनेक्टेड विद टाइम एंड मोरालिटी, एंड द स्पीकर्स आस्क हिज बिलवेड टू एंजॉय लव बिफोर यूथ एंड लाइफ डिसअपियर। एंड इनके कार्पे डियम थीम के बारे में, जिसको हम सीज द डे कहते हैं। मार्वल यूजेज वेट, एक्सैगरेशन एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। तो इसको पॉइंट्स क्या हो जाएंगे इसके? सबसे पहले डन के लव एज सीक्रेट स्पिरिचुअल पोम के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर मार्वल के लव, टाइम और मोर्टैलिटी एंड कार्पे डियम थीम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द कार्पे डियम ट्रेडिशन। डिस्कस मार्वल पोम इन द कंटेक्स्ट ऑफ 17th century मेटाफिजिकल पोइट्री।
अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले कार्पेडियम के बारे में डिस्कस करेंगे, मीन्स सीज द डे, enjoy the present because life is short. Marvel's argument developed in 3 stages. First, if we had unlimited time, the speaker says that they would spend an enormous amount of time courting each other. And second point, but time is passing. Youth and beauty will disappear and death is inevitable. Third point, therefore enjoy the present since time is moving quickly. They should make the most of their love now. And the poem is metaphysical because it combines wit, argument, paradox, imagery and intellectual reasoning. तो इसका पॉइंट्स क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम अनलिमिटेड सीज द डे के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कॉन्सेप्ट एंड्रू मार्वेल ने अपने क्विज पोएम मिस्ट्रेस में यूज़ किया है. देन ये बताना है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम नहीं है, अनलिमिटेड टाइम नहीं है, टाइम इज़ रनिंग आउट एंड सीज द प्रेजेंट. Then question number 8. Discuss Milton as a poet of the Puritan age. How do the religious, political and intellectual concerns of the 17th century expression in Book 1 of Paradise Lost? इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले बात करेंगे, मिल्टन वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द 17th century England. Then in Paradise Lost, Book 1, religious concern, Milton deals with God, Satan, sin, temptation, obedience and free will. Political concerns, Milton's ideas about liberty, authority and rebellion can be connected with the political conflicts of his age. Then intellectual concern क्या हो जाएगा? The poem explores difficult questions such as why does evil exist? Is human beings choice free? What is the relationship between God and humanity? And last में Satan's rebellions and his desire for independence are especially important for understanding these concerns. तो हमको क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारे लिए? सबसे पहले मिल्टन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैन उनके बुक 1 के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, दैन प्यूरिटनिज्म को भी हम इंक्लूड करेंगे, दैन रिलीजन, दैन लिबर्टी, पॉलिटिक्स एंड फ्री विल के बारे में डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9. ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री विथ चॉसर टू मिल्टन. Discuss the major changes in poetic themes, language, literary movements and the conception of the poet during his period. इसमें हम सबसे पहले चौसर के मिडिवल एज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पोइट इंक्लूड हो जाएंगे. पहले हम चौसर के मिडिवल एज में बात करेंगे, मिडिवल सोसाइटी के बारे में, रिलीजन और पिलग्रिमेज के बारे में, रियलिज्म के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेरी लैंग्वेज के बारे में. देन हम स्पेंसर के एलिजाबेथ एंड रेनेसा के बारे में डिस्कस करेंगे, वही ह्यूमनिज्म के बारे में, क्लासिकल इन्फ्लुएंस के बारे में, लव, ब्यूटी एंड माइथोलॉजी के बारे में एंड रिच इमेजिनेशन के बारे में. और फिर हम आ जाएंगे जॉन डन के मेटाफिजिकल पोइट्री में, जिसमें हम वही विट, कंसीट, पैराडॉक्स एंड लव एंड रिलीजन के बारे में बात करेंगे. फिर मार्वेल के मेटाफिजिकल कार्पेडियम के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइम एंड मोर्टैलिटी, लव, कार्पेडियम, विट एंड आर्ग्यूमेंट. देन हम मिल्टन के प्यूरिटन एज के बारे में डिस्कस करेंगे, रिलीजियस एंड एपिक पोइट्री, बिब्लिकल थीम्स, फ्री विल एंड ओबीडियंस, ग्रैंड स्टाइल एंड सबलाइम इमेजिनेशन. तो इसमें इजी सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले चौसर के मिडिवल रियलिज्म के बारे में बात करेंगे, देन स्पेंसर के रेनेसा ह्यूमनिज्म में के बारे में बात करेंगे, देन डन के मेटाफिजिकल विट, मार्वेल के कार्पेडियम, देन मिल्टन के प्यूरिटनिज्म एंड एपिक विजन के बारे में. तो इस क्वेश्चन के लिए हमको हिस्ट्री काफ़ी अच्छे से पता होनी चाहिए. आई होप आप इसको सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. फ्रॉम चॉसर्स मिडिवल रियलिज्म टू मिल्टन्स ग्रैंड एपिक विजन, इंग्लिश पोइट्री रिफ्लेक्ट्स द ट्रांजिशन फ्रॉम द मिडिवल एज टू द रेनेसा एंड द प्यूरिटन एज. डिस्कस विद सूटेबल रेफरेंस टू चॉसर, स्पेंसर, डन, मार्वेल एंड मिल्टन. अगर आप 9th क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको 10th क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा बनाना. इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले कनेक्ट करेंगे ऑल 5 पोइट्स को एंड शो हाउ इंग्लिश पोइट्री चेंज्ड. देन चौसर के वही रियलिज्म, मिडिवल सोसाइटी, कैंटरबरी टेल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे. देन स्पेंसर्स के एलिजाबेथ एंड रेनेसा और ब्यूटी, क्लासिकल इन्फ्लुएंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे. एंड डन के इंटेलेक्चुअल एंड आर्गुमेंटेटिव स्टाइल थ्रू मेटाफिजिकल पोइट्री, and Marvel's metaphysical wit with Carpedium, especially in his to his poem Mistress. And then Milton के takes English poetry to the level of the grand Christian epic in Paradise Lost. Then इसमें हम याद क्या रखेंगे, कैसे इसको किस वाइज इसको लिखना है.
medieval social realism, then Renaissance humanism, then metaphysical intellectualism, then carpe diem, then Puritan religious ethic. This is the main framework you should remember for this question. Okay. So these are the 10 most important questions. Remember, don't just memorize the question. Understand the central argument and key points, what you can develop in your mains answer. So this is for all. और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे एग्ज़ाम तक. सो अगर आपको ये मेरी क्वेश्चन अच्छी लगे तो प्लीज़ सब सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना खुद से. और मैं ये सीरीज़ हम शुरू रखूँगी अभी एग्ज़ाम तक. और मैं नेक्स्ट पार्ट में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर को फिर से डिस्कस करूँगी 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना. तब तक के लिए थैंक यू.